दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सब पोर्शन, जैसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक एंड inelastic collision. We read about elastic and inelastic collision. What is the basic difference? Momentum is conserved in all type of collision, that is elastic and inelastic. And momentum p is conserved in both the cases. Okay, p conserved, but in case of elastic, in case of elastic, kinetic energy is also conserved, which is not the condition in elastic collision. Okay, not conserved. So these are the this is the basic difference between elastic and inelastic collision between two bodies or a system of bodies. Okay, so then we studied different conditions of the inelastic collision, like a body is moving at a initial velocity v1i, and m2 particle is moving with a initial velocity before collision. That is initial velocity means this is before collision, and after collision let the particles velocity be v1f and v2f, and what are the equations by which we can solve such kind of problems. Okay, so what are the equations according to the conservation of linear momentum? In case of inelastic collision, only momentum is conserved, so this is the equation, this is basic equation. And whenever we are considering that both the masses are getting stick to each other, or you can assume that after collision both the masses are moving at a common velocity, that is v. So by those kind of assumptions we can solve such, we can derive such type of formulas. Okay, I have already studied in the last class, discussed in the last class. So in the by the velocity of the center of mass, what is the velocity of the center of mass? Okay, according to the conservation of linear momentum, p is equal to mv, where m is the center of the mass, you can say m1 plus m2, and v, center of mass, is the point at which the center of mass is actually possessing and it is moving with a velocity. Okay, so these are the kind of equations. Then we solved some problems and we discussed about elastic collisions in one dimension. What are the conditions of elastic collision in one dimension? What will be the equations after solving such type of after putting such type of cases where conservation of momentum and conservation of energy is also come into account. Okay, so these kind of things we have discussed in the last class. साहिल तक पहुंचल देखी आज्ञा सर पहुंचल बेंगलोर रे नहीं सर हाँ सर भाईजाक रे अछि एबे हां भाईजाक रे तुम को भाईजाक रे रहउचंदी ना कोन ना बेंगलोर नहीं सर भाईजाक रे रहउचंदी अच्छा ठीक है हैदराबाद ओके ठीक है these are the kind of equations. Okay, while we are solving stationary target, suppose the target is stationary, this okay, mute your voice. So this target is stationary, so initial velocity is 0, it is at rest, and this body, this is called projectile is moving, and this is target, and it is colliding with the target. Okay, so after that this is also moving with the velocity, and this mass is also moving with the velocity. So such kind of equations, if the collision is elastic, so if we are assuming the collision is elastic, that means conservation of momentum and conservation of energy ର ଏଠି ପଡିବ equations ପଡିବ. तो similarly सेठू जो आमे equation पाइथिले दीटा equation पाइथिले, velocity 1 final माने velocity of the first body, final velocity माने after collision what is the final velocity of first body, and after collision what is the final velocity of second body. Okay, so এই diagram গুড়াକ ଟିକେ just try to visualize or try to remember the diagram. Whenever the particle is moving and suppose projectile is moving, target is at rest. Projectile is moving but target is also moving. Okay,
तो एगुड़ा विभिन्न टाइप रो केसेस हमको आसी जीवो प्रॉब्लम सॉल्व कर लगे तापर बोथ आर मूविंग टारगेट बट ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर और सेम डायरेक्शन टू ईच अदर एवं तांको भितरे जदी इलास्टिक कोलिजन होची ताले कोन लिखि परिबा ओके सो दीज आर द काइंड ऑफ इक्वेशंस वी derived in the last class. So one more problem also we have solved in the last class. You can refer the video to Vidyasagar class recordings. Okay. So center of mass and momentum सेटा title कोन देइछन छाने तो सेटा को देखि परिबो and 80 गोटे मोटे just गोटे तम मानु पई सॉरी अरे सेटा केमति हो प्ले केमति हो come on अच्छा इटी गोटे गोटे एग्जांपल देखो सपोज इटा देखा हला is it visible to all of you hello Yes, sir. ये वीडियो चला ना सबके स्क्रीन पे Yes, अच्छा sir. ठीक है ये क्या है जैसे कि दो एक पार्टिकल यहाँ पे देखो व्हाइट वाला बॉल जो मूव कर रहा है और सेकंड पार्टिकल रेस्ट पे था पर ये होने के बाद हिट होने के बाद दोनों पार्टिकल एक वेलोसिटी में मूव कर रहा है बट इन वन डायमेंशन ये वेलोसिटी में मूव कर रहा है ठीक है सो ये केस कौन सा केस हो जाएगा ये जो ऊपर में हम लोग देखे थे ये जैसे सपोज दिस ये जो केस है स्टेशनरी टारगेट था और प्रोजेक्टाइल आके क्या हिट किया ये M2 को हिट किया तो M1 भी कुछ देर के लिए चलेगा उसका वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी आफ्टर माने वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और M2 भी एक वेलोसिटी में हो जा रहा है सो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जांपल्स बट आमे देखिबा suppose this is a problem okay we'll solve this problem but before solving this problem there is another kind of that means physical phenomena that is collision in two dimensions okay this is a problem I will solve kariba but before just go through it so collision in two dimensions what is collision in two dimensions let us see here so ये एक टारगेट ये एक प्रोजेक्टाइल है M1 okay M1 is a projectile here and this projectile is moving with a velocity that is v1 initial and it is colliding with a target that is called M2 which is at rest but in माने real conditions actually हर समय हमारा जो कोलिजन है वो हेड ऑन कोलिजन होगा वैसा कोई जरूरी नहीं है ठीक है सो हेड ऑन कोलिजन होने से ठीक है चलो एक एक्सिस में मान लो जो दो बॉडी जब कोलाइड करेंगे तो वही सेम एक्सिस में ही वो दोनों मूव करेंगे वैसा कोई जरूरी नहीं ठीक है तो इट में चेंज द पाथ और चेंज द डायरेक्शन तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सो लेट टू डायमेंशन मतलब क्या हो जाएगा दो एक्सिस आ जाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे सो दिस M2 इज मूविंग एट दिस डायरेक्शन ये हिट होने के बाद दिस M2 is moving at this direction and this M1 is moving at this direction okay so and it is at an angle θ1 and θ1 ये जो M1 जो नेगेटिव x एक्सिस में जा रहा है xy प्लेन में सो वो हो जाएगा θ1 एंड लेट दिस बी द θ2 मतलब कौन से एंगल में वो मूव किया हम और एक एग्जांपल हम दिखा सकते हैं जैसे कि ये वाला एग्जांपल है तो इसको पहले अरे यार इसको पहले फिर ये करना पड़ेगा तो देखते हैं ये होता है कि नहीं हाँ ये जो मैंने स्ट्राइक कर रहा है ये थोड़ा स्पीड में वीडियो जा रहा है जस्ट इमेजिन मतलब ये जो व्हाइट कलर का बॉल है ये जब हिट कर रहा है तो देखो दोनों डायरेक्शन में फैल के जा रहा है दो बॉल क्या हो रहा है ये दूसरा मतलब टारगेट जो है वो दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है और प्रोजेक्टाइल जो है जो M1 है वो दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है सो दैट यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स ओके सो ये इस टाइप का कंडीशन है so for this type of conditions what we can observe so let us consider in a closed isolated system हम लोग क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग consider कर रहे हैं कि ये जो condition है this माने no external force is applied on this
होल सिस्टम। सपोज ये जो भी हम लोग हिट कर रहे हैं या जो मास ये जो जा रहा है एक डायरेक्शन में, दूसरा मास ये जो m1 है ये दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है, पर एयर का कोई इफेक्ट नहीं है, लेट अस कंसीडर। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है, फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। सपोज एक बॉडी जब दूसरे बॉडी के ऊपर हिट कर रहा है या फिर एक सरफेस के ऊपर जब ये बॉडी जब मूव कर रहा है तो उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होता है ना, बट दोस काइंड ऑफ कंडीशंस वी आर जस्ट नेग्लेक्टिंग। ओके, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में, ऑलवेज आइडियल कंडीशन में एक इक्वेशन को इमेजिन किया जाता है, उसके बाद रियल कंडीशंस सेटिस्फाई किया जाता है, ठीक है। सो टू सॉल्व द इक्वेशंस इन आइडियल कंडीशन इट विल बी इजी, ओके। So then we can approximate to the real conditions, okay. So similarly ये क्या होता है, तो in an isolated system हम लोग क्या जानते हैं, total linear momentum must be conserved। कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट, P1 इनिशियल प्लस P2 इनिशियल, मतलब बिफोर कोलिजन M1 का जो इनिशियल मोमेंटम और बिफोर कोलिजन M2 का जो इनिशियल मोमेंटम, दोनों को ऐड किए। सो फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल। सो इनिशियल फाइनल मोमेंटम मतलब आफ्टर कोलिजन ऑफ दिस वन पार्टिकल एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ दिस टू पार्टिकल, okay, second particle. So this will be the equation. So for the time being, let us consider this collision to be an elastic collision. Let us consider, let this collision be elastic collision, okay. So similarly two dimensions में ये जो elastic collision में क्या हो जाएगा, kinetic energy भी conserve हो जाएगा। So kinetic energy 1 plus kinetic energy 2 before collision is equal to kinetic energy 1 after plus kinetic energy 2 after, okay. So kinetic energy 1 before is equal to what, mass into velocity, okay. for k2i क्या हो जाएगा, ये क्योंकि रेस्ट में है ये जो मास, ये जो m2 जो मास है ये रेस्ट में है, so that should be equal to 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 है, okay. so is equal to फाइनल क्या हो जाएगा, m1 v1 cos थीटा 1। क्यों, हम लोग अगर x एक्सिस वाला जो कंसीडर करेंगे तो दिस ये अगर यहाँ से एक नोटेशन ड्रॉ करेंगे इसे, सो m1 v1 cos थीटा 1 अगर कंपोनेंट फॉर्म में दोनों को लिखेंगे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा। सिमिलरली ये जो देखो ये एक जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जहां पे 90 डिग्री और एंगल दोनों रहेंगे तो वो कंपोनेंट हमेशा cos थीटा कंपोनेंट होगा, ओके। सो ये हो जाएगा जैसे कि v1f cos थीटा 1, इस वेक्टर के लिए अगर x कंपोनेंट ये हो जाएगा v1f cos थीटा 1 प्लस m2 v2f cos थीटा 2, ओके। ये वेक्टर के लिए ये वाला साइड वैसे x कंपोनेंट उसका वो हो जाएगा, ओके। एंड ये तो क्योंकि x डायरेक्शन में जा रहा है, सो वी हैव जस्ट रिटन इट m1 v1 i, उसका y कंपोनेंट नहीं। सिमिलरली y कंपोनेंट अगर हम लोग देखेंगे, y कंपोनेंट विल बी व्हाट, सो y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल में y कंपोनेंट क्या है, 0 है, क्योंकि द बॉडी इज मूविंग, दिस मास इज मूविंग at initial velocity in the horizontal direction, it has no vertical component, okay. but vertical component यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि फाइनल मतलब यहाँ जब स्ट्राइक करने के बाद दोनों साइड आ जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। सो दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल बी व्हाट, sin थीटा, v sin थीटा। अगर ये वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है v, हम हमेशा बोले हैं ये वेक्टर अगर v है, सो दिस शुड बी v cos थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला 90 डिग्री है, so this should be v cos theta and this perpendicular axis should be v sin theta, okay। ये अगर एक वेक्टर है, हाइपोटेनियस अगर v है, so हाइपोटेनियस cos थीटा, मतलब cos थीटा मतलब क्या, v into cos थीटा क्या फॉर्मूला, बेस बाई हाइट। सो बेस तो ये वाला एंगल है मतलब साइड है बेस, एंड हाइट हो जाएगा आपका क्या, वही सेम हाइपोटेनियस, दैट शुड बी v, so that will give you base, okay। so उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो वो वैसे हो जाएगा माइनस m1 v1f sin थीटा, माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है,
सो -m1 v1 sin थीटा। सिमिलरली ये वाला साइड हो जाएगा m2 v2f sin थीटा, क्योंकि v2f ये हो जाएगा। ओके, मतलब ये m2 का वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये m1 का वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ओके, सो इसको अगर ये एक इक्वेशन है। और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व हो रहा है उसको हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, ये तो वेक्टर ये सब कोई करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज स्केलर, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। सो m1 v1 I स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2f स्क्वायर। ओके, तो ये जो तीन इक्वेशन हमको मिला। Okay, so from these three equations, what are the unknown quantities? Suppose m1 is a unknown quantity, m1 is a unknown quantity, m2 is a unknown quantity. Okay, so theta 1 is a unknown quantity, theta 2 is a unknown quantity. Okay, and v1 initial is a unknown quantity, v1 final is a unknown quantity, and v2 फाइनल इज ए अननोन क्वांटिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 हम लोगों के पास क्वांटिटी है। अगर इस 7 क्वांटिटी में से हम लोगों को 6 क्वांटिटी दिया होगा तो हम एक क्वांटिटी वी कैन मेजर, वन क्वांटिटी वी कैन मेजर। सपोज थीटा 1 थीटा 2 दिया है, m1 m2 दिया है, v1f v2f दिया है, पर v इनिशियल नहीं दिया है, सो वी कैन मेजर। तो ये जो सपोज ये दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन में क्या क्या अननोन क्वांटिटी है, m1 है, v1 है, और थीटा 1 थीटा 2 चार क्वांटिटी है, और v1f है और v2f है। तो 6 क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी है। तो 6 में से अगर 5 भी दिया है तो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशंस। ओके, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। तो अभी एक प्रॉब्लम देखेंगे। सो लेट अस कंसीडर, हाँ, this figure let us consider block 1। ये है block 1 of mass m1, two stationary block, there are two stationary block in block 1 approaches a line of two stationary block, ये दोनों stationary है, and the block 1 is moving at a velocity v1 initial is equal to 10 meter per second, v1 initial is equal to 10 meter per second। so ये ब्लॉक आके जब इस ब्लॉक में स्ट्राइक किया, m2 में स्ट्राइक किया, तो m2 में स्ट्राइक करने के बाद ये m2 कहां तक मूव हुआ, यहाँ तक मूव हुआ। यहाँ तक मूव होने के बाद m3 को फिर स्ट्राइक किया। m3 को स्ट्राइक करने के बाद दिस m3 इज मूविंग, ये देखो m3 इज मूविंग बट m2 बिकम स्टेशनरी। ओके, m2 बिकम स्टेशनरी। और ये जो m1 यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये कुछ वेलोसिटी में मूव कर रहा है या रेस्ट में आ गया है, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है हमको। ओके, सो दीज आर द, माने ये फिगर में जो दिया है उसको यहाँ पे लिखा गया है। सो v1 इनिशियल का वैल्यू एक दे दिया है। we have what quantities we have, let us write v1 initial is equal to 10 meter per second। ओके, ये क्या है, मास m1, मास m1, it collides with a block 2 which then collides with block 3 which has mass m3, मतलब m3 का मास दे दिया, m3 का मास दे दिया 6 kg, 6 kg आफ्टर सेकेंड कोलिजन, मतलब ये हो गया सेकेंड कोलिजन। ये जो कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये जो मूव कर रहा है दैट इज सेकेंड कोलिजन, ये हो गया फर्स्ट कोलिजन, ये हो गया सेकेंड कोलिजन। ओके, आफ्टर सेकेंड कोलिजन ब्लॉक 2 इज अगेन स्टेशनरी, मतलब ब्लॉक 2 स्टेशनरी हो गया। ओके, एंड ब्लॉक 3 हैज अ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बिटवीन 2 and 3, ये कोलिजन 2 and 3 के बीच में जब कोलिजन हो गया तो ब्लॉक 3 हैज अ वेलोसिटी v3f is equal to 5 meter per second, v3f is equal to 5 meter। so यहाँ पे let us assume the collisions are elastic, हमको दे दिया है। so what are the masses of block m1 and m2, m1 और m2 का डाटा हम लोगों को नहीं दिया है तो वो फाइंड आउट करना है। and what is the final velocity v1f of block 1, मतलब जो v1f इनिशियल वेलोसिटी में मूव कर रहा है पर कोलिजन करने के बाद व्हाट इज द
ब्लॉक 1 का क्या वेलोसिटी है, वो तीन क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सो हाउ टू फाइंड आउट? ओके, पहले हम लोग सेकंड कोलिजन के बारे में देखेंगे। सेकंड कोलिजन, क्योंकि हम लोग के पास M3 है, हम लोग के पास V3F है, और एक क्वांटिटी भी हम लोग के पास A है। सो ब्लॉक 2 स्टॉप्स विथ कोलिजन विथ ब्लॉक 3। ब्लॉक 2 स्टॉप्स विथ कोलिजन विथ ब्लॉक 3, मतलब क्या, V2F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। V2F 0 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सो हम लोग के पास थ्री क्वांटिटीज, नॉन क्वांटिटीज है सेकंड कोलिजन के ऊपर। सो पहले हम लोग सेकंड कोलिजन को सॉल्व करेंगे, देन विल गो फॉर फर्स्ट कोलिजन। ओके, सेकंड कोलिजन सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या क्या डाटा मिलेगा, सो लेट अस कंसीडर नाउ। सो V2F इज इक्वल टू 0, V3F हम लोग के पास है और M3 है। सो हम लोग को V2 और 3 के बीच में जो कोलिजन है उसको फाइंड आउट करना है। So what are the formulas for elastic collision? What are the formulas for elastic collision? What I have said? Sorry, ये मूविंग टारगेट है, ये स्टेशनरी टारगेट के लिए। ये जो टाइप का टारगेट है दैट इज स्टेशनरी टारगेट था, और टारगेट को हिट करने के बाद दोनों मूव कर रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस वी हैव टू पुट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। ओके, सो पर ये हम लोग किस किस ये के लिए अप्लाई करेंगे, किस किस मास के लिए अप्लाई करेंगे, 2 और 3 मास के लिए हम लोग वी हैव टू अप्लाई। सो व्हाट वी कैन कंसीडर, वी कैन कंसीडर V2 फाइनल इज इक्वल टू M2 minus M3 divided by M2 plus M3 into V2 initial। ओके, किए एटा भुवनेश्वरी काई की गार काटिलो, लिभाओ एटा को। हाँ, M2 minus M3 divided by M2 plus M3 V2 initial। So I am कौन जानचे, V2 final is what, 0, just put it 0 is equal to what, again M3 टा कितने, 6 kg, M3 is 6 kg है। So M2 minus 6 divided by M2 plus 6 into V2I, V2I टा कितने, what is V2I? 0। हैं, V2I हमको फाइंड आउट करियार अछि। सो V2 इनिशियल हैला। अच्छा, V2 इनिशियल एठी कोन हेइ जिवो तिके भलो भाबरे लक्ष्य करिक मते को। व्हाट इज V2 10 इनिशियल? meter per second। Just एठी V2I, let us consider this V2I। okay, गोटे quantity something XYZ whatever may be the quantity। so ei equation रे एटा जदि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करबा 0 सहित कोन हे जिवो, 0 is equal to M2 minus 6 into V2I। okay, so एबे एटा को जदि एपोर्ट साइड को नै आसीबा डिवाइड कर दवा कोन हो जिवो, 0। so M2 minus 6 is equal to 0। so M2 टा केते हैला, 6 है। that means M3 रो मास जदि 6 kg, M2 मध्य 6 kg। that means M2 is equal to M3 is equal to 6 kg हमें पाइले। हमु कोन मागी छि, व्हाट आर द masses of block 1 and 2, हमें 2 रो मास पाइले। ओके, by using this equation। तापर एबे let us consider one more equation। इलास्टिक कोलिजन माने पई आउट इक्वेशन कोन कहितली को मते के कहबो फार्मूला एठी को, ब्रजेश्वर को। सेकंड इक्वेशन टा कोन, इलास्टिक कोलिजन स्टेशनरी टारगेट पई। सर V2 M1 by M1 plus M2 V1I। हां को V3F, एबे नोटेशन कोन दबा, V3F हैला Yes sir। is equal to, हमें 2 और 3 भीतर देखु छी, we are considering 2 and 3 mass, so just 2M2 हैला, that is equal to 2M2
divided by M2 m2 plus M3. plus m3, but this is what ए दी जन जगह mass समान, so we can just Yes, sir. write 2m2 2M2. 2m2 into v2i. V2I. Okay, so v3f is the final velocity of block 3. Final velocity हमको देइछि केते 5 meter per second, so 5 is equal to एटा कोन हे जिवो 2m2 by माने 1 v2i. Okay, so what is v2i then? v2i टा कोन हे जिवो 5 meter per second. 5 meter per second. v2i is 5 meter per second. Now let us consider हमु कोन मागी छि, बट हमें m2 mass रो mass ता केते बाहर कर सालेनी, but we have to now find the mass of velocity, mass of the block 1. Okay, what is the magnitude of the mass of block 1 and what is the final velocity of block 1? माने ये block 1 जब यहाँ पे कोलाइड कर रहा है ब्लॉक 2 के पास, ओके, कोलिजन होने के बाद इस मास का कितना वेलोसिटी है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. So now we have to consider what? So the collision between mass m1 and m2. So now let us consider this m1 and m2. So collision m1 m2 के बीच में हम लोग देखेंगे, और you can write first collision. फर्स्ट कोलिजन के बीच में देखेंगे. सो नाउ ब्रजेश्वर बोलो व्हाट विल बी द माने फार्मूला. अगेन सेम फार्मूला बट यहाँ पे नोटेशन चेंज हो जाएगा. देखो v2f will be equal to what? 2m1 divided by m1 plus Plus m2 M2. into V1I. v1i. So that is equal to what? v2f हम लोगों को कितना मिला है 5 मीटर पर सेकेंड. So 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे देखो v2 इनिशियल जो यहाँ पे है, बट एक्चुअली v2 इनिशियल मतलब ये यहाँ के लिए ये v2 फाइनल हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? So 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, बोलो अभी कितना डालेंगे, दैट इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 into what? 10 मीटर पर सेकेंड. Per second. 10 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, so if you need to find out this quantity, so just solve this problem. So what you will find this one? m1 will be what? M1. हाँ, m1 टा कितने पाएगा? m1 will be equal to 1/3 into m2. Okay, so 1/3 into 6 kg. What is m1? What is m2? That is 6 kg. 6 kg. 6 kg. 6 kg. Okay. So नहीं कौन गोटे भूल होउची बोले. सर m3 टा 6 kg. अच्छा ठीक है. So 1/3 into m2 एटी पाइबा. So 1/3 into 6 kg, that will be 2 kg. 2 kg. Similarly एटा टे भलो कि नोटेशंस दबो नले कंफ्यूजन हो. So similarly I mean next equation पकेवा कोन? v1f will be equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into what? v1 initial. So that will be equal to 1/3 m2 minus m2 divided by 1/3 m2 plus m2. इट देखो m1 टा केते 1/3 m2. So 1/3 m2 minus m2 divided by 1/3 m2 plus m2 into what? v1 initial is 10 meter per second. So that will be equal to -5 meter per second. ओके, मतलब इसका मतलब क्या है, जब ये मास यहाँ पे ब्लॉक 2 में जब स्ट्राइक किया तो वो रिबाउंड करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में एट ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये मास, ये जो m2 मास है, ये m2 मास चले जाएगा राइट साइड डायरेक्शन में एंड इट विल कोलाइड विथ मास m3. सो हमें देखिबा इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट
ये कौन सा कोलिजन के लिए हम लोग के पास ज्यादा डाटा दिया है पहले। तो कौन सा कोलिजन के लिए दिया था, ये सेकंड कोलिजन के लिए हम लोग के पास 3-4 डाटा वगैरह था। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे पहले उस कोलिजन को कंसीडर करके, देन विल कंसीडर द नेक्स्ट कोलिजन फॉर द प्रीवियस कोलिजन। ओके, बट प्रीवियस कोलिजन के लिए यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी हो जाता है। ओके, so these are the equations। बुझिएला के बुझी पालन जदि को କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲିଭେଇ ସାରିଲିଣି, ଦେଖି हो जाएगी। एनीवन? लास्ट डे कौन कॉलेज डे सेटा डे बुझेई दियो तो उतरा ये है सरस्वती, नो सर अनुषया अनुसया, बहुत बहुत झियो, बहुत यस सर वेरी गुड। बहुत पर्यंत जाऊनी भुवनेश्वर रु ज्ञानटा नहीं गिरी। सो एटा बुझे जाई देखिबू बुझी जीव किछि नाही एतरे हला। आ नेक्स्ट प्रॉब्लम जीवा ओ लिभे सालेनी पुणी आ तक के लिखिबू। सो सेकंड क्वेश्चन देखो, two springs are stretched by same force, the force constant of the first spring is greater than the second spring, then the work done is, एटी चारटा ऑप्शन तुमको दे। Two spring constants are stressed by same force, F1 is equal to F2, let us consider। Okay, so F1 is equal to what? Spring ro formula कोन minus kx, okay, and F2 is equal to minus kx। जानिछे हमें एटा ना जानने एटा हमें एटा जानिछे। ओके, सो स्प्रिंग का क्या होना था वो सब हम बताए हैं पहले, ठीक है। तो स्प्रिंग का फोर्स, उसका वर्क डन, ये सब के बारे में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। सो फोर्स on F1 is equal to F2, let us consider, and eta is K1 and eta is K2। The force constant of the spring K1 is greater than the force constant of spring K2। Okay, then the work done is same in both the spring, or work done is more in spring K1, work done is more in spring K2, and work done is 0। क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द वर्क डन फॉर ए स्प्रिंग? -12 kx²। -12 kx²। ओके, -12 kx²। so let us consider this k, it कौन देची force constant of spring K1 is greater than the second spring K2, it देची। so F1 is equal to F2 it देची माने it छाड़ा, let us consider, we can consider this x is same for both the cases। okay, but it देखो, so -12 K1, suppose let us consider this K1 is suppose 5 into x² is equal to, sorry, equal to it लिखिबानी, and out रे so K1 greater than K2 देछि परा। so K1 टा जदी 5 and let's consider K2 is 3, so इठी work done 2 हे जीवो कोन -12 into 3 into x²। so which quantity is greater? Which quantity is greater? -1/2 into 3 into x²। So -1/2 into x²। so -3 is greater than -5, negative axis रे सबुले छोटोटा बड़ quantity, so the work done will be more in spring K2। simple, work done will be more in spring K2। okay, consider a body of mass m which is colliding with another body at rest of mass m/3। okay, so consider a body of mass m colliding with another body at rest and तार mass कोन m/3। if the collision is inelastic, then the fraction of the kinetic energy, initial kinetic energy, that is lost or transformed into heat during the collision। कौन कहती kinetic energy is never conserved in inelastic collision। why?
because some energy is lost in the form of other energy. Maybe it is thermal energy, maybe it is electrical energy or whatever energy. Okay. So energy loss is there. Let us consider the collision is inelastic. Then what is the fraction of kinetic energy that is lost? Okay. So inelastic collision re kon hue? Konta conserve hue? What is conserved in inelastic collision? Momentum. Momentum is conserved in inelastic collision. So a con formula ta pakeva iti inelastic collision re. So what is the formula? This, let us consider this is the formula, or we can just consider this one also. Okay. I mean, it consider karipriyo eti rest re achi na, so v2i is equal to 0. So eta madhya ame consider karipriyo just to solve this problem. Okay, it actually question that କହିବା କଥା completely inelastic collision anyway, but ଏଇଟା କୁ ଆମେ ଏଇ equation ମଧ୍ୟ consider କରିପାରିବା. So m1 v1i is equal to m1 plus m2 into v. We can consider ଏଇ equation ଟା मते कह आर पटे हैला. So m1 v1i is equal to m1 plus m2 v. Oh, come on. So m vi is equal to m plus 3 by m, sorry, m by 3, m plus m by 3 into v. हैला. एबे मते कुहा v initial is equal to कौन है जीवो 3m plus m. এটা कौन होगा 4m divided by 3 into v. এটা divide करिवा m. So এটা को हम कौन लिखि परिवा v initial is equal to 4 by 3 v final हम लिखि परिवा. v final माने गोटे common velocity हम लिखि परिवा. So kinetic energy प्रथम रा कौन होबो half m v I square. Okay, पहला वाला बिफोर कोलिजन हाफ m v I स्क्वायर. पर ये केस में क्या हो जाएगा, ये केस में क्या हो जाएगा, हाफ m कौन को 4/3 पकेबा ना 3/4 पकेबा 4/3. 4/1. 4/3. हाफ m 4/3 नो 3/4 एटा v फाइनल. हमें हाफ देखो काइनेटिक एनर्जी LHS काइनेटिक एनर्जी RHS हमें कैलकुलेट करिवा. सो RHS बेले को वेलोसिटी रे मूव करछि, दिस इज द वेलोसिटी. So Vf is equal to 3/4 v initial. Okay, so half m 3/4 v initial. I mean नले कंपेयर केमती करिवा दी पट साइड रे whenever both the side में v initial रहेगा then only we can compare the ratio of the energy loss. Otherwise how we can consider. Okay, so एटा को स्क्वायर करिवा सॉरी टोटल का स्क्वायर हो जाएगा. Okay, so that total 3/4 vi का स्क्वायर हो जाएगा. So half m into ये क्या हो जाएगा 9/16 vi पर square. यहाँ हाँ ठीक है 9/16 v स्क्वायर 9/16 into v इनिशियल का स्क्वायर. बट नाउ तुम माने केही गोटे कहिलनी जे फाइनल टा कला बेले दीटा मास वी हैव टू कंसीडर बोथ द मास, नॉट ओनली सिंगल मास, वी हैव टू कंसीडर बोथ द मास. ले m/3 बा m plus m/3 both the mass we have to consider. Okay, Yes, so एठी हमें पकाओ दि भलो की पकाओ ताले काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू केते हे जीवो हाफ m
प्लस m by 3 into v initial टा कहते 3/4 v initial square माने v final is equal to 3/4 v initial square. So that will be equal to what? Half এটা কোন হয়ে যাব 3m plus m 4m by 3 into 3/4 into 3/4 into v initial square. इसको सिंप्लीफाई बस करो तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 3/4 इंटू हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर. ओके सो कितना लॉस हुआ है यहाँ पे मांग रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी दैट इज लॉस्ट और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट ड्यूरिंग कोलिजन. के कहबो को so half mvi square minus 3/4 half mvi square. ओके so इसको कॉमन ले लो माने 4 minus 3 divided by 4 माने 1/4 1/4 हो गया तुम्हारा लॉस दैट विल बी इक्वल टू 0.25. ओके काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का इतना था पर फाइनल में इतना हो रहा है. सो व्हाट इज द लॉस्ट एनर्जी? सो माइनस माइनस माने LHS minus RHS that is lost in the kinetic energy, lost as the heat energy or transformed into heat. Okay so এটা হচ্ছে তম কথা বুঝিয়েলা না কি বুঝি পারলনি কো এটা আউটরে বুঝি দিই অনুসায় বুঝিয়েলা. yes sir. ইপসিতা yes sir আজ গীত গাউନ ତ sir ମୁଁ କଣ ସେଦିନ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଆଉ କିଏ ଗାଉଥିଲା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ କୁହ. ହଁ sir ଇପ୍ସିତା ତମର କଣ ବଇଣ୍ଡା ନା? ହଁ sir ପଏଣ୍ଟ ଆରେ ଅନୁସୟା ତମ ଘର କୋଉଠି ବୌଦ୍ଧ ନା ବଇଣ୍ଡା? sir ମୋର ଘର ତ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ରେ. और जाजपुर टाउन रे वेरी गुड. हां ठीक अनुसया बहुत बहुत पचाउची तू हां कहू. हां ज्योति ओझा समझ में आ रहा है कि नहीं? yes sir ओके collision in two dimension तो देखिले এটা देखिला. okay so this is problem on center of mass mu पढ़ी छी center of mass विषय रे गोटे problem करले. so there are three uniform thin rods each of length L is equal to 22 centimeter from an inverted U. It is forming an inverted U. okay empty U टा कोन empty हला. so it देखो गोटे जिंस let us consider it देखो x डायरेक्शन टा फिगर रे को पट देइची कोठी देइची y डायरेक्शन टा को पट देइची. so एटा को हमें let us consider this left side with the origin okay एटा को जदी हमें origin नेले so ये नेगेटिव y एक्सिस हो जाएगा. so it should be negative okay -l और इसको जब लेंगे तो -l लेंगे. ऑलवेज ये सब वेक्टर फैक्टर में हमेशा थोड़ा होना है. साइन कन्वेंशन हमेशा मैं बोला हूं एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव लेना है. y वैसे ऊपर साइड में अगर जाएगा मतलब अपर साइड में सो दैट शुड बी पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड साइड दैट शुड बी नेगेटिव. we have to consider the frame of reference from what frame we are observing. अगर तुम लोग ग्राउंड से ले रहे हो तो ये दूसरा चीज हो जाएगा. पर यहाँ पे फिगर में इसको ग्राउंड ये मतलब ओरिजिन यहाँ पे दिया है. सो वी हैव टू कंसीडर दिस माइनस है. ओके सो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बारे में हमको पूछा है. सो कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पूछ रहा है. सो हाउ टू फाइंड आउट दिस वन? ये जो टॉप साइड में सो रुको ये तीन एक्चुअली बार है. ये एक बार है इसका मास है क्या 42 ग्राम सॉरी एंड ये एक बार है दैट इज 14 ग्राम एंड दिस बार इज 14 ग्राम.
व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम सेंटर ऑफ मास। ये टोटल को एक सिस्टम कंसीडर किया है। सो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट of the system center of mass? 14 into 3, what is that? 42 kg, sorry 42 gram. So 3m you can consider, if eta jodi ame mass m nele, we can consider this to be 3m. Okay, so ame iti let us consider m and 3m. So 14 pore dekhiba. So let us consider this one is 3m and this is m and this is m. So this ये जो बार का टॉप बार, दिस टॉप बार, ये टॉप बार का लेंथ अगर L है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? L/2 में रहेगा। सिंपली L/2, आंख बंद करके L/2 वी कैन कंसीडर। ओके, उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये जो टॉप मास है उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सो L/2 0 वी कैन कंसीडर। सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज L/2 0। सिमिलरली लेफ्ट लेग और राइट लेग कंसीडर करो। लेफ्ट लेग उसका XY कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा? बोलो। सर -L/2 माने 0 - L/2 0 माइनस L/2 L/2 एमती एटा कोन हे जिवो? এটা L 0 और -L/2 सॉरी एटा L नंबर काहे कि L नंबर एतिकी बाट ऑलरेडी हमें पळे आसीचे, x कोऑर्डिनेट हमें एतिकी बाट पळे आसीचे, सेति पई एटा को कोन करबा, एटा L नबा। एटा कोन एटी देखो, एटा 0, एटा होची L। सो हमें L बाट पळे आसीचे हॉरिजॉन्टल, किंतु y डायरेक्शन रे सेंटर ऑफ मास ता केते रहइबो? -L/2 रे रहइबो हला। सो दीज आर द थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास हला। L/2 एटा हला 0, L/2 0, सेंति एटा L -L/2 एवं एटा हे जिवो 0 -L/2। सो एबे सेंटर ऑफ मास रो जो फार्मूला हम कहितली, सेंटर ऑफ मास रो फार्मूला के कहइबो कुहो, जति लेखिचो कुहो जल्दी। व्हाट इज x सेंटर ऑफ मास? दुईटी मु देइतली डायग्राम दिकी सेंटर ऑफ मास रो डायग्राम मु करथली कहितली। ओके, सो मते कुहो प्लीज। m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2 रह plus m3 x3 डिवाइडेड बाय कोन कहितली m1 m1 plus m2 plus m3। जदि तीनटा मास अछि मु 3 नै गेली हला। सो एठी हमें x टा कोन कंसीडर करिवा? व्हाट इज x? coordinate। 3m हला। हमको सेंटर ऑफ मास तापर सेंटर ऑफ मास रो x कोऑर्डिनेट मांगी। सो लेफ्ट लेग रो कोन हे जिवो? सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट ता कोन हे जिवो? कोन नेले सेंटर ऑफ मास लेफ्ट लेग रो एटी 0 नेले हला। सो एटा मो टिके सीक्वेंस चेंज कर देछि भूल रे। So let us consider this. So m0 plus टॉप आगो लेफ्ट नेले तापर टॉप एक्सिस ता कोन हबो? मास ता केते? 3 into मास माने एटा 14 ग्राम हेले ऊपर ता केते अछि? 42 ग्राम। सो 3m L/2 इट नंबर। सो 3m into L/2 प्लस m कोन हे जो L केते बाटा जाईची L, खाली x कोऑर्डिनेट ता हमें देखुची डिवाइडेड बाय कोन हे जो m plus m plus 3m m plus m plus 3m। सो एठी हमें L ता केते जानि छे? व्हाट इज दिस L? L is 22 cm given in figure। L is 22 cm। What is m?
mass is 14 gram हमें consider करिवा 3m is 42 gram we can consider. So equation में गुड़ा कर ये जो equation में पकाओ ये सब value so find out it 0 एगला this will be around so 22 by 2 so total is 22 divided by 2 that will be equal to 11 centimeter. हेलो यस सर सर ठीक ठीक है। एम लिख ले पुनी एम कहीं लिख ले क्लास में है मैं बाद में करता हूँ कोई अर्जेंट है क्या अच्छा जब मैं फोन करता हूँ और 10-15 मिनट में फोन करता हूँ ठीक ठीक हाँ कौन ला वो सेटा तो एक्स एक्सिस रे नुनांती की 3m टा कहीं नउचंदी 3m टा कहीं नउचंदी 3m अरे ए बार रो m टा मास टा केते 42 ग्राम परा कहली जदि ए बार गुडाकर मास द वर्टिकल रॉड्स ईच हैव मास 14 ग्राम द हॉरिजॉन्टल रॉड हैव मास इट क्वेश्चन ने कोन देजी 42 ग्राम सो 14 into 3 is 42 ना यस सर हमें खाली सिंपलीफाई करिया पे मु कहि दी छी हला किछि सेमति नाही हम जस्ट डायरेक्ट 42 पकोना कोन अछि सो दिस इज द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हमें बाहर कर देले सेंटर ऑफ मास रो एतिकी y कोऑर्डिनेट सेमति पकेबा y कोऑर्डिनेट पकेबा ए फिगर रे जोटा करथिली लेख हला बोले कि लेख कोन माने कोऑर्डिनेट उडा को लिखि दियो लेफ्ट लेग पई लेफ्ट लेग माने एटा लेफ्ट लेग पई xy यदि हम पकेबा xy केते 0 minus l/2 सेमती राइट लेग सॉरी टॉप लेग पूरा सीक्वेंशियली जीवा टॉप लेग पई xy टा हिजबो l/2 0 कहार सेंटर ऑफ मास रो केवल मु कहूची सेंटर ऑफ मास रो कोऑर्डिनेट वी हैव टू कंसीडर सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सेमती राइट लेग सो राइट लेग xy रो हिजबो कोन हिजबो l minus l/2 ओके सो हां y एबे नाउ वी हैव टू कंसीडर दिस y कोऑर्डिनेट क्वेश्चन ने कोन मांगछ व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द center of mass m minus l/2 सही इक्वेशन मुझे इक्वेशन कहिछि लास्ट क्लास माना करे सही इक्वेशन पकेओ m minus l/2 plus 3m into 0 खाली y उडा पकेबा इठी खाली y कोऑर्डिनेट उडा को इठी पकेबा विजुअलाइज करिया पे चेष्टा करो कोऑर्डिनेट सिस्टम को केमती रिप्रेजेंट करा जाए प्रॉब्लम मान करे सेटा चेष्टा करो नहले हे परिबा सब बेले तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो नेमती फिगर दे देथिबो इनडायरेक्टली पचरिबो सब क्वेश्चन इतरे किछि नाही खाली जस्ट हमें कोऑर्डिनेट जदी पकेई जानिबानी माइनस पॉजिटिव पकेई जानिबानी ताके कर परिबानी केबे हैला सो इठी y कोऑर्डिनेट हमें एमती पकेइले डिवाइडेड बाय कोन हे जिवो सेम m plus 3m m plus 3m हला एटा गोटे टोटल सिस्टम लेट अस कंसीडर दिस टोटल टू बी ए सिस्टम हमें तीनटा गोटे बार को कनेक्ट करिचे तीन जन तार ए मास देछि तो तार सेंटर ऑफ मास ता को जगह रे पॉइंट रे रहिबो वी हैव टू फाइंड आउट ओके सो एटा जदी हमें सॉल्व करिवा दैट विल गिव यू -l/5 ओके टोटल टाइम पाइबा -l/5 and ताकू जदी सॉल्व करिवा that will get value पकेला परे -22 divided by 5 that will get -4.4 centimeter 4.4 centimeter ता माने सेंटर ऑफ मास ता कोठी रहउची somewhere in this point okay एठी गोटे कोठी नेगेटिव एक्सिस रे गोटे को पॉइंट रे -4.4 पॉइंट रे रहउची okay 11 centimeter from x axis origin रे x axis रू 11 centimeter एवं y axis रे origin रू 4.4 centimeter जगह रे
ए सेंटर ऑफ मास टा रोची तो सेंटर ऑफ मास र कोऑर्डिनेट हमें कौन पाइले 11 minus 4.4 so this is the coordinate of the center of mass okay so another problem ha को नहीं सर किसी प्रॉब्लम को ब्रजेश्वर कौन असुविधा को ना सर किसी प्रॉब्लम नहीं हाँ ओके हाँ এই প্রবলেমটা করিবা তা পূର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ अटेंडेंस नहीं जाए मैं ଟିକେ প্রবলেমটা ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ all of you watch this problem while I take your attendance so कैसे सॉल्व करेंगे जस्ट खाली मुझे कोई बोलना राजदीप दास ये कौन है रे बाबा हाँ राजदीप दास हेलो हेलो सर फर्स्ट क्लास के बाबू नहीं सर कोते क्लास हेलानी नहीं सर मैं राजीव दास बोले बोले लिखा ही क्लास है हाँ राजदीप तो कुह तुम हाँ तमर हाँ हेला तो को नंबर क्लास हेला एटा सर अगर हाँ बहुत सर आगुर आगुर करूछ तो हाँ सर बोले राजीव लिखा ही थिला तो अच्छा अच्छा ठीक अछि जे तमे तमे करूछ तो क्वेश्चन हाँ सर माने हाँ सर केतेटा क्लास करलनी तो बहुत दिन है सर कोई चीज 2 सप्ताह तमर घर के न घर के ने मालकानगिरी मालकानगिरी अच्छा मालकानगिरी एमबी 79 ना कोन नहीं सर एमबी 92 एमबी 92 अच्छा बुझी होती ना हाँ सर अच्छा हो आ मो भाषा बुझी परछ तो हाँ सर वो ठीक हां नेटवर्क धरछ ना तमर सेठी हाँ सर ठीक अछि हो कोन असुविधा हेले डायरेक्ट फोन करियो न कथा हो फोन कर न करले टिके बेटर है लगी जेतरे जा असुविधा हो कहू हला ए क्लास रे पढिला रे जा असुविधा हो डायरेक्ट कहू काना फोन जदि तमे माने 30 जन पिला जदि समस्त गोटे गोटे टाइम रे फोन करियो म पागल होई छी ना अच्छा हो हाँ को एटा के कहइबो ब्रजेश्वर को इप्सिता कहइबो आज इप्सिता रे एई चैप्टर रे किछि डाउट नै कहइबो इप्सिता सोई पड़ल कि सर नहीं सर हाँ जो को देखिए कि थीटा 2 सेटा हाँ होची थीटा 2 टा हबो से 30 डिग्री हबो हाँ काहे कि केमति कहइबो ना मुझे खाली फिगर रे देखै दैछि बोली कहि देला काहे कि 30 डिग्री हबो मन कर फिगर ता मु एमती न करी कि मु एमती कर दे कि ए टिके एमती कर दै थानी तल तो 30 डिग्री कहि थानु को फिगर तो दबा भी कथा नुह जस्ट दिया हिची तम मन पई फिगर दिया ही न थाए निजे करियो पड़े डायग्राम करियो पड़े सो एबे मते कुहो अच्छा एठी कोन कहिची ए गोटे बॉल गला एठी गोटे स्ट्राइक कला ए वॉल रे स्ट्राइक कला एंड रिबाउंड इन द सेम y कंपोनेंट ओके सो देखो वेक्टर टा कोन हला वेक्टर टा ऑपोजिट डायरेक्शन रे गला y कंपोनेंट वेक्टर टा ऑपोजिट डायरेक्शन रे गला बट एटी कोन लिखिची बट डज नॉट अल्टर द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी the initial speed of the velocity which is 2 meter per second okay theta 1 is 30 degree and y component reverse back hela into does not alter the x component so what are the angles theta 2 a angle ta kete magichi and what is the change in the ball's linear momentum in unit vector notation what is the change in ball's linear momentum
in unit vector notation. अच्छा मते कुह जदि x direction रे velocity change होउनी change बॉडी रो मास तो चेंज होबार चांस नहीं एठी तो कोन टा कंजर्व होची momentum is conserved in x direction, so what we can write pxi is equal to pxf. x direction रे conserve होची momentum माने px, okay, momentum in x before collision and momentum in x after collision. Okay, collision कहा भितर बॉल एवं ए वॉल भितर collision. So what is the x component of this velocity? What is the x component of this velocity? देखो, this is the x component of velocity. एटा जदि empty direction रे जाउची, एटा जदि थीटा एवं एटा जदि 90 डिग्री, ताले x कोन ए साइड टा हे जीवो x component. Similarly x component right side रे e component टा हे जीवो तमरो x component. हला केमती करिवा केमती लेखिवा एटा कोन हे जीवो मोमेंटम कोन फार्मूला कोन मास इनटू वेलोसिटी mv but what is the x component mv sin theta हे जीवो काहे कि एठी एटा हे जीवो cos theta 90 डिग्री एवं एंगल सेही साइड टा कोन हे जीवो cos theta हे जीवो but a side टा हे जीवो sin theta and this will be your hypotenuse. सबु बेले बारंबार कहली एंगल एवं 90 डिग्री जो साइड रे लागि थिबे सेही साइड टा हे जीवो cos theta आ सबु बेले कोन ट्रायंगल टा हमको एमि सुंदरिया करी देथिबो कि ना टिल्टेड हे जइथिबो ओके इन्वर्टेड हे जइथिबो सो सेति पे हमहु सब बेले कंसीडर करिया पड़ियो 90 डिग्री टा कोठी लागि छि एवं एंगल टा कोठी लागि छि सेटा जदी sin थीटा तार ऑपोजिट एंड टा हे जिवो माने तार अलगा साइड टा हे जिवो sin थीटा हला तो से एठी कोन हे जिवो mv sin थीटा mv इनिशियल sin थीटा 1 is equal to mv इनिशियल sin थीटा 2 एठी मु इनिशियल काहे कि लिखिली काहे कि से कहि छि जेहेतु कि मोमेंटम अल्टर होउनी किबा वेलोसिटी अल्टर होउनी मोमेंटम मध्य कंजर्वड आमे जानि छे ओके सो डेफिनेटली वेलोसिटी मध्य समान दी जनकर वेलोसिटी भी डेफिनेटली समान एवं वेलोसिटी जदि समान एंगल मध्य कोन हे जिवो समान हे जिवो सो sin थीटा 1 is equal to sin theta 2 or you can write theta 1 is equal to theta 2 so if theta was right that is 30 degree so theta 2 is also 30 degree but now let us consider what is the change in the ball's linear momentum in unit vector notation so सेथि पई हमकु y component मध्ये कंसीडर करिया पड़ियो काहे कि एठी मोमेंटम एठी देखो मोमेंटम ता को पट साइड रे जाउची जो नेगेटिव y एक्सिस डायरेक्शन रे जाउची तार गोटे x कंपोनेंट अछि तार गोटे y कंपोनेंट अछि एवं ए मोमेंटम ता को हमें रिप्रेजेंट करि परिबा गोटे यूनिट वेक्टर नोटेशन रे x कंपोनेंट जदियो चेंज होनी किंतु y कंपोनेंट चेंज होची ओके लिनियर मोमेंटम माने कोन गोटे लाइन रे जते बेले गोटे पार्टिकल जाउची वन डायमेंशनल सेटा तो हमें को लिनियर मोमेंटम ओके सो एबे कॉल करो सो डेल्टा p change in linear momentum that is what p final minus p initial जदि हम देखिबा x एक्सिस रे चेंज होनी y एक्सिस रे कोन होची चेंज होबो सो y कंपोनेंट आइटी कोन this is the y component this is the y component okay so what is this component this is cos theta जदियो एटा y component but this will be mv cos theta final minus mv cos theta initial and unit vector notation जदि हमें देखो एटी ताको एमति लिखा जाय m1 v I cos theta 2 एका कथा cos theta 2 सेम जदि एंगल तो दी जनकर समान अछि minus j cap काहे कि नेगेटिव y axis direction so that can be written like this minus j cap
minus m1 vi cos theta 1 minus j cap. ओके सो एठी पकाओ वैल्यूज गुडा पकाओ जा जा देछि मास रो वैल्यू देछि 0.165 एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड cos थीटा तमे माने जानि छ सो एठी पकेइबो डी रंकर पकेला परे आंसर मारिबो सो दैट विल बी 0.572 kg मीटर पर सेकंड j कैप माइनस एठी ना minus 0.572 kg meter per second j cap. कौन कार बाउंस हो गला जदी को okay so thank you for today's session very good Thank हां you, sir. को अनुसार बुझेला यस सर ओके दिंडा यस सर कौन दिंडा सर पसुची ना बुझी नहीं स्टोरेज होची तो यस सर वेरी गुड एक्सीलेंट यस सर हाँ ठीक अच्छे तो राजीव तुम नाटा कौन राजीव ना राजदीप ना हूँ राजदीप सर राजदीप राजदीप दास दास हाँ सर डी लगे ना नहीं आर हाँ डी लगे सर जे डी लगे अच्छा वो हाँ, आखिर सर। डी लगे कहना राजदीप नाम मत टी घृणा अछि तो ये नाम प्रति से so anyway don't mind okay so okay ठीक है थैंक यू थैंक यू सर for